السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنا چیپٹر جو 15 ہے بیسک پروبیبلٹی کا وہ کمپلیٹ کر لیا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آور نیو چیپٹر، دیٹ از چیپٹر نمبر 16۔ چیپٹر نمبر 16 جو کہ ہمارا بیس کرتا ہے پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن پر۔ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں چیپٹر 15 اور چیپٹر 16 دونوں موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں۔ ان دونوں چیپٹرز میں سے تقریباً 10 سے 15 نمبر کا کویسچن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے چیپٹر 15 اینڈ 16 کو دونوں چیپٹرز کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک؟ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن سمجھنے سے پہلے اس کا فلو چارٹ سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو رینڈم ویریبلز ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ بات پہلے بھی بتا چکا تھا کیونکہ اب ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس رینڈم ویریبلز میں دو طرح کے ویریبلز ہوتے ہیں، ایک ڈسکریٹ ویریبل اور ایک ہمارے پاس کانٹینیوس ویریبل ہوتے ہیں۔ ڈسکریٹ ویریبل آپ جانتے ہیں کہ جو انٹیجر فارم میں ہوتے ہیں، جن میں ڈیسیمل نمبر نہیں آ رہا، تو فار ایگزامپل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ نمبر آف کارز ہو گئی، وہیکلز ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح نمبر آف پرسن ہو گئے یا امپلائیز ہو گئے یا نمبر آف ہاؤسز ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہمارے پاس ڈسکریٹ ویریبلز ہیں، ٹھیک ہے؟ کانٹینیوس ویریبل ہمیں پتہ وہ ویریبل ہوتا ہے جو ڈیسیمل پلیس میں فال کرتا ہے۔ ہمیں پتہ کہ ڈیسیمل پلیس میں جو ویریبل فال کرتا ہے وہ کانٹینیوس ہوتا ہے۔ تو کانٹینیوس ویریبل میں جو ہمارے پاس ایگزامپل آئے گی، آپ کو پتہ ہے کہ کانٹینیوس ویریبل کی ایگزامپل کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس ہائٹ ہو گئی، اس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس ہائٹ ہو گئی، ہائٹ کانٹینیوٹی کے ساتھ انکریز ہوتی ہے۔ جو ہمارا ویٹ ہوتا ہے یہ بھی کانٹینیوٹی کے ساتھ انکریز ہوتا ہے، اور جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ بھی کانٹینیوٹی کے ساتھ انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کانٹینیوٹی کے ساتھ انکریز ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ اور کانٹینیوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکریٹ ویریبلس کو فائنڈ کریں، یعنی کہ if we want to find the probability of discrete variable، اگر ہم ان ڈسکریٹ ویریبلس کی probability فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہائپر جیومیٹرک probability distribution، اور سیکنڈ ہمارے پاس بائنومیل probability distribution، اور تھرڈ ہمارے پاس پوائزن probability distribution۔ یہ 3 ڈسٹریبیوشنز ہم نے پڑھنی ہے ڈسکریٹ ویریبل کے، اور کانٹینیوس ویریبل میں صرف ایک ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن ہے، دیٹ از دی نارمل probability distribution، دیٹ از نارمل سے یہاں پہ صرف ایک کیا، نارمل probability distribution۔ تو جب ہم یہ 4 ڈسٹریبیوشن انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو ہمارے پاس جب ہم یہ 4 ڈسٹریبیوشن پڑھ لیں گے، نمبر 1 از ہائپر جیومیٹرک، نمبر 2 از بائنومیل، پھر پوائزن، پھر اینڈ پہ 4th نمبر پر ہم
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ लेंगे तो हमारे पास हमारा चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है जी। तो ये हमारा स्केच था, ओवरव्यू था जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर 16 में, ठीक है जी। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक। ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और ये कब अप्लाई होती है? ये तब अप्लाई होती है जब ये फॉलोइंग कंडीशंस मेट करेंगे। नंबर 1 याद रखिएगा कि हाइपर ज्योमेट्रिक अप्लाई होती है अगर हमारा क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। अगर हमारा क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है तो इट्स मीन हम ये हाइपर ज्योमेट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड, ये हाइपर ज्योमेट्रिक एक डिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है। ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है, ठीक है। और डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको पता है कि डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली डिपेंडेंट होती है, बॉल्स इनकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मली डिपेंडेंट होती है। इनके अलावा भी हो सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया, हाइपर ज्योमेट्रिक में सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, ओनली 2 आउटकम्स। वो जो 2 आउटकम्स होंगे, वो या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। इसके अलावा तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होगी। या तो पास होगा या तो फेल होगा, या तो गुड होगा या तो बैड होगा, ठीक है। या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव गुड्स होंगे। तो इसमें हाइपर में सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, तीसरा आउटकम नहीं होगा, यानी कि थर्ड कैटेगरी नहीं होगी हमारे पास। उसके बाद probability changes at each trial, हर एक ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी बदल रही होगी, हर एक ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी बदल रही होगी। ये वही बात है जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी जब मैंने चैप्टर 15 का एमसीक्यूज करवाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। फॉर एग्जांपल हमने 52 कार्ड्स में से 2 किंग ड्रॉ करने। हम चाहते हैं कि हम 2 किंग ड्रॉ करें, एक किंग ये, एक किंग ये। हम देखते हैं कि हर एक किंग में प्रोबेबिलिटी बदलती है नहीं बदलती है। जब मैंने पहला किंग ड्रॉ किया, मुझे पता है जो किंग होते हैं टोटल 4 होते हैं और आउट ऑफ 52 होते हैं, यानी कि इस पहले किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आई 4/52। फिर मैंने कहा दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आई, तो दूसरे किंग की जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई, क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिक विदाउट रिप्लेसमेंट से आता है। जब मैंने एक किंग ड्रॉ किया होगा तो एक किंग साइड पे आ गया, आप पीछे रिमेनिंग 3 किंग रह गए। 52 कार्ड में से भी एक कार्ड ड्रॉ कर चुका तो रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए, 51 रह गए।
तो इट्स मीन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आई 3/51। तो देखें 4/52 ये वाली प्रोबेबिलिटी कभी भी 3/51 के प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं है। यानी कि देखें अब मैंने ये 1 ट्रायल था, ये सेकंड ट्रायल था, तो देखें दूसरे ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी बदल गई। तो हाइपर में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेंजेस एट ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी बदलती जाएगी। अगर मैं तीसरा किंग ड्रॉ करता तो तीसरे किंग में क्या होता, अब पीछे कितने 2 किंग आ चुके, अब पीछे कितने किंग रह गए, 2 किंग रह गए। तो अगली प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/50। तो देखो ये भी इक्वल नहीं है किसी के, तो हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी बदलती जा रही है। सेम विद द केस बॉल में भी ऐसा हो रहा है, जब एक बॉल निकल जाती है तो पीछे बॉल का कलर भी कम हो जाता है, टोटल में से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेंजेस एट ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी बदलती रहेगी। याद रखिएगा ये मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा होता ना, ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा होता कि आप जनाब साहब बस इसको फॉर ग्रांटेड ले लें, अच्छा ये चीज़ें हाइपर में होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें लिख रहा होता हूँ, समझा रहा होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर कहेगा कि हमने क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट से किया, बताओ ये क्वेश्चन हाइपर से होगा या नॉर्मल से होगा, हाइपर से होगा या नॉर्मल से होगा या ये अब बाइनोमियल से होगा। हम कहेंगे ये क्वेश्चन जो है ये हाइपर ज्योमेट्रिक से होगा। फिर वो कहेगा डिपेंडेंट इवेंट बताओ किसके लिए होता है, हाइपर के लिए या बाइनोमियल के लिए, हमने कहा हाइपर के लिए। फिर वो पूछेगा अगर हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी बदलती है, बताओ ये हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या ये कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम कहेंगे कि हर एक ट्रायल में जब प्रोबेबिलिटी बदलती है वो तो हाइपर ज्योमेट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ आ रही है? तो आपने इन सारों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। Experiment is repeated for a definite number of time. For a definite number of time. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होगा वो लिमिटेड होगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा वो हमारा लिमिटेड होगा। लिमिटेड मीन ट्रायल्स लिमिटेड होंगे, 5 ट्रायल्स हो गए, 15 ट्रायल्स हो गए, 20 ट्रायल्स हो गए, 12 ट्रायल्स हो गए, इस तरह, यानी कि बहुत लार्ज ट्रायल्स नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंट जो हम रिपीट करेंगे 4 बार हो सकता है, 8 बार हो सकता है, 12, 13, 20 बार हो सकता है, 25 मरतबा हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ हमें एक हद मुकर्रर करेगा कि आपने जो एक्सपेरिमेंट रिपीट करने हैं आपने इतने रिपीट करने हैं, ठीक है, 18 तक करना है, 15, 12, 8, 9 जो भी वो कहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब चलते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो ये है। इसको 2 स्टाइल से लिखा जाता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है KCX मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस कैपिटल KC स्मॉल n माइनस x डिवाइडेड बाय कैपिटल NC स्मॉल n। एक कम्बिनेशन के साथ लिखा जाता है और एक यही फॉर्मूला ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, या इस तरह भी लिखा जाता है। इस ब्रैकेट का मतलब C होता है KCX, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस KC स्मॉल n माइनस x डिवाइडेड बाय कैपिटल NC स्मॉल n, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल फॉर्मूला लग रहा है, आप कहेंगे सर ये तो इतना मुश्किल फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक समझा चुका तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँगा। परेशान बिल्कुल ना हुई ये फॉर्मूला देखकर,
آپ سب کو ہائپر جیومیٹرک بہت اچھے سے آتی ہے، آپ سب کو بہت اچھی آتی ہے، اور آپ اس کے پریکٹس کوشچن بھی سولو کر چکے ہوئے ہیں، آپ کو اس میں گرپ بھی آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. بس صرف میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہائپر جیومیٹرک کے کوشچنز ہیں، ٹھیک ہے. اس فارمولے کو بعد میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے کیوں نہ میں آپ سے ایک کوشچن سولو کروا لوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا کانفیڈینس آیا آپ میں، ٹھیک ہے جی، کہ ہائپر جیومیٹرک کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوشچن سلیکٹ کرتے ہیں. چلیں جی، کوشچن میں لکھتا ہوں پہلے، پھر اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ a bag contain 12 balls of which 3 are marked. If 5 balls are drawn out together, what is the probability that 3 of the marked balls are among these 5. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس کوشچن ہے، سارے کوشچن، ٹھیک ہے جی. ایگزامینر نے نہیں بتایا کہ کوشچن کس سے ہے، تو نارملی جب بھی کوشچن سائلنٹ ہوا کرے گا ہمیشہ ہمارا کوشچن وداؤٹ ریپلیسمنٹ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، وداؤٹ ریپلیسمنٹ. تو اب ہم اس کا اسکیچ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا بیگ کنٹین 12 بالز، ایک بیگ میں 12 بالز ہیں، اور which 3 are marked، ان 12 میں سے 3 بالوں کے اوپر ہم نے کوئی نشان لگایا ہوگا، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہمارے پاس کچھ مارکڈ بالز ہیں جس کے اوپر ہم نے کوئی پرٹیکولر نشان لگایا ہوگا، اور کچھ ایسی بالز ہیں جن کے اوپر ہم نے کوئی نشان نہیں لگایا، وہ ہمارے پاس ان مارکڈ ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل بالز آ گئیں، تو بتا سکتے ہیں ٹوٹل بالز کتنے؟ آپ کہیں سر ٹوٹل بالز آر 12 ٹوٹل بالز ہیں، تو ہم نے 12 لکھ دیا یہاں پر. پھر میں کہوں گا بتاؤ اس میں سے مارک کتنی ہے، آپ کہیں سر 3 آر مارکڈ، 3 مارکڈ ہیں. تو خود بتاؤ بھائی ان مارک کتنی ہوگی؟ 12 میں سے 3 مائنس کیا 9، تو ان مارک 9 ہوں گی. ویل ڈن، بہت اچھے. نیکسٹ، if 5 balls are drawn out together، پانچوں کی پانچوں بالز اکٹھی نکالنی ہیں. بالز ٹو بی سلیکٹڈ، آپ کہیں گے سر 5 بال سلیکٹ کرنی ہیں. بالز ٹو بی سلیکٹڈ 5 بالز. واٹ از دی پروبیبلٹی، ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ واٹ از دی پروبیبلٹی. اچھا 5 بالز کو ہم نے کیا کیا؟ سلیکٹ کیا. واٹ از دی پروبیبلٹی 3 آف دی مارکڈ بال ار، اس نے کہا 3 مارکڈ بال ہونی چاہیے. یہ جو 5 بالز آپ نکالو گے بیگ میں سے، یہ ایک بیگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ 12 بالز پڑی ہوئی ہیں، آپ نے 5 بالز اکٹھی نکالنی ہیں. وہ 5 بال اکٹھی اس طرح ہیں کہ 5 بال اکٹھی اس طرح ہیں، ان میں 3 پرفیکٹ 3 جو ہے
वो मार्क्ड बॉल हो। हमने कहा कोई मसला नहीं है, यानी कि तुम कह रहे हो कि 3 मार्क्ड बॉल हो, इसका मतलब 2 यहां से आएंगी, ऐसा ही है ना। उसने कहा 3 एटलीस्ट एटमोस्ट का वर्ड यूज नहीं किया। जब एटलीस्ट एटमोस्ट का वर्ड यूज नहीं करा तो हमने भी इस चक्रों में नहीं पढ़ना। 3 ऑफ द मार्क्ड बॉल मीन 3 मार्क्ड बॉल हो, तो हमने कहा ठीक है 3 मार्क्ड बॉल हो गई, फिर 2 अनमार्क होंगी, यहाँ पे ऑब्वियस बात है। तो हमने कहा चलें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो देखें 3C3 मल्टीप्लाई बाय 9C2 दिस इज योर फेवरेबल आउटकम। ऐसे ही करते थे ना हमने, मैंने चैप्टर 15 में आपको इस तरह क्वेश्चन करवाए ना, वो पंजाब वाला, ठीक है, कि हमने कमेटी बनानी है, पंजाब में से इतने बंदे सेलेक्ट करो, बलूचिस्तान केपी की, ये वाला क्वेश्चन हमने, याद आया आपको? फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम कितने हैं? 12C5, तो 12C5। आंसर फाइंड कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आता है? शाबाश, जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें इसका आंसर और मुझे बताएं आंसर क्या आता है। थ्री सी थ्री मल्टीप्लाई बाय 9C2 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ गया 1/22। आंसर इसका आ गया, द आंसर इज 1/22। तो आंसर आ गया 1/22। इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर था। अब मुझे बताएं ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करना मुश्किल था क्या? कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाया? बताएं ज़रा। इस तरह क्वेश्चन करवाया हुआ है ना आपने, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, बस ये वही क्वेश्चन आसान सा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, फिर दोबारा इस फॉर्मूले की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं इसको जरा। ठीक, 4 आइटम आर टेकन, four items are taken at random without replacement from a box of 12 items containing 3 defective items. Containing 3 defective items. The box is rejected the box is rejected if more than one item is found. One item is found to be defective
find the probability that box is accepted. ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना है। अभी नोट मत कीजिएगा, आराम से पहले समझ लें। जब क्वेश्चन समझ लग जाए उसका आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से फिर इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इस फिलहाल सारा फोकस रखें इसके समझने पर, ठीक है जी। उसने कहा कि 4 आइटम आर टेकन एट रैंडम, यानी कि हमने सिलेक्शन कितनी करनी है, 4 आइटम फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ कंटेनिंग 12 आइटम्स। ये 12 क्या हैं, ये टोटल हो गया, ये हमारी सिलेक्शन होगी। कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम, कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम। उसने कहा कि इस 12 में 3 डिफेक्टिव है, यानी कि अगर मैं इसका स्केच बनाऊं तो इसका स्केच ये बनेगा कि डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव भी कह सकते हो, गुड भी कह सकते हो। डिफेक्टिव, गुड, यहां पर हमारा टोटल आ गया। टोटल्स कितनी आइटम्स हैं, 12 प्रोडक्ट्स हैं। डिफेक्टिव कितनी है, उसने कहा 3 डिफेक्टिव हैं। तो गुड्स कितनी होंगी, हमने कहा 9 होंगी, ठीक है। प्रोडक्ट टू बी सिलेक्टेड, हमने कहा 4 आइटम सेलेक्ट करनी है, हमने कहा 4 आइटम सेलेक्ट करनी है। कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, अच्छा ये हो गया। उसने कहा अच्छा ये वाली सारी इंपॉर्टेंट बात है। अब द बॉक्स इज रिजेक्टेड। अज्यूम करें हमने ना 12 हमने जो कह लें कि हमने कुछ चीज़ मंगवाई, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कह लें, कोई एनर्जी सेवर मंगाए बड़े वाले 12, वो 12 का डब्बा था। हमने वो 12 एनर्जी सेवर मंगाए बड़े वाले। तो हमने कहा भाई देख, हम बॉक्स रिजेक्ट कर देंगे, हम तेरे से खरीदेंगे नहीं। इफ़ मोर देन 1 आइटम इज डिफेक्टिव, अगर एक से ज़्यादा चीज़ ख़राब हो गई तो हम बॉक्स वापस कर देंगे। अज्यूम करें हमने डिलीवरी मंगाई, हमने कहा भाई ऐसा करो 12 एनर्जी सेवर का बॉक्स भिजवा दो, लेकिन एक बात याद रखना, हम पहले बॉक्स ओपन करेंगे, सारे बल्ब चेक करेंगे, अगर एक डिफेक्ट हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मोर देन वन आइटम अगर वो डिफेक्टिव निकल आई, एक से ज़्यादा यानी कि एक बल्ब भी ख़राब है, 2 भी ख़राब हो गए, तो बॉक्स क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, बॉक्स हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें डिफेक्टिव निकल आई तो हम बॉक्स रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज एक्सेप्टेड। बॉक्स को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, खुद जरा सोचें, रैशनल पर्सन बनकर सोचें। बीइंग अ रैशनल पर्सन, व्हाट्स योर डिसीजन, एट व्हाट पोर्शन ऑफ आइटम डू यू एक्सेप्ट द बॉक्स। अगर वो कह रहा है एक से ज्यादा आइटम अगर डिफेक्टिव निकल आई तो हम बॉक्स रिजेक्ट कर देंगे, फिर मुझे बताएं आप कि एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहेंगे सर अगर एक आइटम डिफेक्ट निकल आई, एक आइटम डिफेक्टिव निकल आई तो बॉक्स एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा बस, आप कहेंगे नहीं सर अगर 0 आइटम भी डिफेक्टिव निकल आई तो भी तो बॉक्स एक्सेप्ट होगा। मैं कहूँगा वेल डन, बहुत अच्छे। इसका मतलब बॉक्स की एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर 1 आइटम डिफेक्टिव निकल आए तब भी बॉक्स एक्सेप्ट होगा, और अगर कोई भी आइटम डिफेक्टिव नहीं निकली, 0 आइटम डिफेक्टिव है, तब तो डेफिनेटली बॉक्स एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, अगर एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल आई तो बॉक्स एक्सेप्ट होगा, और अगर कोई भी डिफेक्टिव ना हुई तो कंफर्म है बॉक्स एक्सेप्ट होगा। अब 4 का कॉम्बिनेशन पूरा करना है, एक यहां से आएगा तो 3 यहां से नहीं आएगा, ऐसे हम क्वेश्चन करते थे ना। और यहां से 0 है तो चारों के चारों कहां से आएंगे, इसका मतलब चारों के चारों गुड्स हैं। 0 डिफेक्टिव का मतलब चारों के चारों गुड है, एक डिफेक्टिव का मतलब है 3 गुड्स आ गए।
صحیح ہو گیا؟ کلیئر؟ بس ٹھیک ہے، آگے تو آسان ہی، آپ کو پتا ہے کمبینیشن بنانا. اب سب سے پہلے بنے گا 3C1 کا 3C1 ملٹیپلائی بائی 9C3. 9C3 ایک کمبینیشن بن گیا. کیونکہ یہاں سے ایک اور لائن بھی آ رہی ہے، 2 روز ہے نا، تو اگلی رو کے لیے پلس کے ساتھ 3C0 ملٹیپلائی بائی 9C4. This is your favorable outcome and the total outcome is 12C4. جلدی سے اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور دیکھیں کیا آنسر آتا ہے آپ کو. چلیں کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم. 3C1 ملٹیپلائی بائی 9C3 اس کے بعد پلس C4 ڈیوائڈیڈ بائی 12C4. آنسر آ گیا 42/55. آنسر آ گیا 42/55. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ آنسر آ رہا ہے. آنسر آ گیا 42/55. یہ آنسر آ گیا. بتائیں کیا یہ مشکل ہے؟ وہ کوشچن کیا اس طرح کا کوشچن ہم نے نہیں کیا تھا؟ کوشچن جو میں نے آپ کو کوشچن کروایا تھا اس طرح کے میں نے 3-4 کوشچن آپ کو کروائے اسی پیٹرن کے. یاد کریں کہ جب میں نے آپ کو ڈیپینڈنٹ ایونٹ سمجھایا تھا تو ڈیپینڈنٹ ایونٹ میں نے آپ کو کوشچن کروایا تھا بوتھ آر کنگ کا. 1 is queen other is ace یہ والا کوشچن کروایا تھا. ٹھیک ہے، فرسٹ از کوئن سیکنڈ از ایس یہ والا کوشچن کروایا تھا. اس کے بعد آپ کو میں نے کوشچن کروایا تھا پنجاب بلوچستان KPK والا، وہ کوشچن کروایا تھا. پھر اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک اور کوشچن کروایا تھا. اس کے بعد 2 کوشچن آج یہ کروا لیے. یہ سارے کے سارے ہائپر جیومیٹرک ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ فارمولا کیا ہے، یہ فارمولا کیسے آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ذرا. فارمولے سے پہلے کیا آپ کو یہ تو بنانا آتا ہے نا، یہ اسکیچ بنانا آتا ہے نا. یہ جو اسکیچ بنایا ہو نا 1 2 3 4 5 6 یہ 6 کے 6 یہی والے سارے کے سارے پروڈکٹس ہیں. یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس کوشچن پڑا ہوا ہے. اس کوشچن میں ہمارے پاس دیکھیں ایگزامینر جس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ ایگزامینر کی سکسیس ہوتی ہے. ایگزامینر جس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، جس چیز کو ایگزامینر جج کرنا چاہتا ہے یا جس کی پروبیلٹی ایگزامینر جانا چاہتا ہے وہ ایگزامینر کے لیے سکسیس بنتی ہے، اور جس کی وہ جانا نہیں چاہتا وہ اس کے لیے فیلئر بنتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر اچھی چیز سکسیس ہوگی، ہر بری چیز فیلئر ہوگی. یہ اسٹیٹ میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایگزامینر انٹرسٹڈ ہے ان مارکڈ، اس نے یہ تو کہا نا 3 are marked، وہ اس کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یعنی کہ ایگزامینر انٹرسٹڈ ہے ڈیفیکٹو، یعنی کہ یہاں اگر میں اس کی بات کروں ایگزامینر انٹرسٹڈ ہے ڈیفیکٹو آئٹم کے بارے میں جاننا. اگر ایگزامینر ڈیفیکٹو آئٹمس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ڈیفیکٹو آئٹم میرے لیے سکسیس بنے گا، گڈ میرے لیے فیلئر بن جائے گا. یہ بات یاد رکھنی ہے. سکسیس اور فیلئر کا تعلق اسٹیٹ میں پروبیلٹی میں اچھے اور برے سے نہیں ہے. سکسیس مین وہ پروبیلٹی کا پورشن جس کو ایگزامینر جاننا چاہتا ہے. ایگزامینر جاننا چاہتا ہے ڈیفیکٹو آئٹم کے بارے میں، تو ڈیفیکٹو آئٹم میرے لیے کیا بنے گا؟ سکسیس بنے گا. گڈ میرے لیے فیلئر بن جائے گا. ایگزامینر گڈ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، گڈ پروڈکٹس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، تو گڈ پروڈکٹ میرے لیے کیا بن جائے گا؟ سکسیس بن جائے گا. ڈیفیکٹو میرے لیے فیلئر بن جائے گا. ٹھیک ہے، سیم ود دا کیس. اب یہاں پر آ جائیں، ایگزامینر جاننا چاہ رہا ہے مارکڈ کے بارے میں. وہ بالز نکالو جس پہ نشان لگے ہوں، تو اس کا مطلب ایگزامینر کے لیے جو سکسیس کا کام کر رہا ہے وہ یہ مارکڈ کر رہا ہے، اور یہ جو ان مارکڈ ہے یہ فیلئر کا کام کر رہا ہے. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس ہائپر جیومیٹرک میں 2 آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یا تو سکسیس ہوگا یا تو فیلئر ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو کے ہوتا ہے یہ سکسیس ہوتا ہے. یہ جو کے ہے یہ ہمارے پاس سکسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس
सक्सेस होते हैं। और एक्स का मतलब होता है कि हमने सक्सेस में से कितनी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, ये सक्सेस की क्या है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन फ्रॉम सक्सेस, ठीक है। अब मुझे बताएं 12 में से अगर 3 मार्क्ड हैं तो अनमार्क कितने हुए, यानी कि ये मेरे पास जो 3 है ये मेरे पास क्या काम कर रहा है, के का, ये मेरे पास के का काम कर रही है, के, ये वाला के। ये जो टोटल जितने टोटल बॉल्स है ना वो हमारे पास कैपिटल एन होता है। जितनी बॉल्स टोटल में से जितनी बॉल्स सिलेक्ट करनी होती हैं ये हमारे पास स्मॉल एन होता है, ठीक है। सक्सेस में से जितनी सिलेक्शन करनी होती है वो हमारा एक्स होता है। ये देखें के हमारा सक्सेस, तो यहां पे सक्सेस कितना है 3। उस सक्सेस में से हमने कितनी सिलेक्शन करनी है, सक्सेस में से हमने 3 की सिलेक्शन की तो 3 हमारा एक्स है, ठीक है। अब पीछे रह गया 9 और 2 क्या काम करें। देखें टोटल एन है, अगर एन में से मैं के माइनस कर दूं तो मेरे पास ये अनमार्क नहीं आ जाएगा 9, तो बिल्कुल, तो ये 9 किसका काम कर रहा है, 9n माइनस के का काम कर रहा है। यानी कि n कितना है, ये n कितना है 12, उसमें से k कितना है 3, तो 12 माइनस 3 करो तो आंसर क्या आएगा 9। तो ये वाला 2 कैसे आएगा, स्मॉल n कितना है 5, x कितना है 3, तो 5 माइनस 3 करें यानी कि स्मॉल n माइनस x करें तो 2 बनता है। तो देखें ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखें क्या मैंने यही नहीं लिखा हुआ, ये देखें जरा, अब गौर से देखिएगा, ये 3 क्या है मेरे पास के सी, ये वाला 3 कौन सा, ये वाला x वाला, तो के सी एक्स। ये 9 क्या है, देखिए n माइनस के है, तो ये 9 क्या है n माइनस के। ये 2 क्या है, स्मॉल n माइनस एक्स, स्मॉल n माइनस एक्स। ये 12 क्या है, कैपिटल N, दिस इज कैपिटल N। सी ये 5 क्या है, स्मॉल n। तो देखें ये वाला फॉर्मूला रेड, अब से रेड वाले को फोकस कीजिएगा, क्या ये नहीं बन रहा, चेक करें जरा, क्या वो नहीं बन रहा। देखें के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स, एन माइनस के सी एन माइनस एक्स, कैपिटल एन सी स्मॉल एन, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। तो देखें जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे इसके बैक एंड पे हमेशा ये हाइपर ज्योमेट्रिक लग रही होती है। याद रखिएगा हर वो क्वेश्चन जो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ आ रहा है उसमें हमारी हाइपर ज्योमेट्रिक लग रही होती है और हाइपर ज्योमेट्री से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। तो इस तरह की फर्दर प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो अब आपने ना ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस फॉर्मूले को कभी यूज नहीं करना, नेवर एवर, कभी यूज नहीं करना। अब जिस तरीके से आपको मैंने सिखाया है आपने उसी तरीके से करना है। वो हाइपर, जैसे कि देखिए ये सॉल्व किया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके अलावा बलूचिस्तान केपी का वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आपने नॉर्मली इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके सर अगर हमने इसको यूज नहीं करना तो फिर इसका लिखने का मकसद क्या, इसको लिखने का मकसद यह है सम टाइम ना आई कैप इन फॉर्मूलाज को ऑप्शन में पुट कर देता है, वो फिर ये जज करवाता है बताओ इनमें से करेक्ट वाला हाइपर ज्योमेट्री का कौन सा फॉर्मूला है। वो क्या कर देगा, इधर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कर देगा, कैपिटल यानी कि इन वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर देगा और कहेगा कि मुझे करेक्ट हाइपर ज्योमेट्री का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है क्योंकि सम टाइम आई कैप ये फॉर्मूला 1 नंबर के लिए पूछ लिया करता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो आज हमने कुछ नया नहीं सीखा सवाए हाइपर ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टीज के, कि हाइपर ज्योमेट्रिक इटसेल्फ क्या होता है। हाइपर ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हाइपर ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना तो ऑलरेडी आपको आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे, डिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको पहले वेल नोन आते हैं। सिर्फ आपको ये बताना था कि हाइपर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो वो आज हमने हाइपर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, और जो पहले मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आपका काम सिर्फ ये है अपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से
सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। इनमें कोई गलती शलती नहीं करनी है आप लोगों ने। चलें एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। बल्कि इसका कल एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कल आपके सामने वो क्वेश्चन सारा सामने आ जाएंगे, उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ आप इतना ही करें, इनको रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने ये काम करना है कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, आपने उन क्वेश्चंस को भी देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में एक हाइपरजोमेट्रिक का और क्वेश्चन करवा दूंगा, एक आधा क्वेश्चन और करवा दूंगा आपको, ताकि फर्दर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कल अपना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।